Welcome back guys. अब हम करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड डीसी सर्किट्स क्वेश्चन 3 पेपर 1 5054. Let's start. Question 3. A student connects a battery, thermistor X and resistor Y in parallel as shown. ये EMF है, ये thermistor है and this is a fixed resistor and they are in parallel. The electromotive force EMF of the battery is E. This is E. The current in X is I. और आपको पता है दीज आर पैरेलल, तो इधर अलग करंट जाएगा और इधर अलग करंट जाएगा. दे विल हैव सेपरेट करंट अकॉर्डिंग टू व्हाट द रेजिस्टेंस इज. जब रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तब कम करंट जाएगा और जब रेजिस्टेंस कम होगी तब ज्यादा करंट जाएगा. द रेजिस्टेंस ऑफ y इज ग्रेटर देन द रेजिस्टेंस ऑफ x. द रेजिस्टेंस ऑफ y is greater than the resistance of x. Take two boxes, one to show correct statement about the potential difference across y, and the other one to show the correct statement about the current in y. अच्छा, potential difference across y. Potential difference across y will be the same as the potential difference across x. And अच्छा, अगर यहाँ जा रहा है E, तो यहाँ भी E ही जाएगा. They will experience the same potential difference and that potential difference will be the E. अगर E value 12 है तो यहाँ भी 12 जाएगा और यहाँ भी 12 जाएगा. They will not have any divisions का split नहीं होगा. So they will be equal. इसको I don't know how to take. ये the current in Y. अच्छा, the current in Y. अभी मैंने आपको क्या बताया था? The current will be dependent on one factor, which is what the resistance is. For example, let me give you an example. This is 12 volts. This is, उन्होंने हमें क्या बोला है? The resistance of Y is greater. तो ये है 600 ohms and this is 400 ohms. As they have stated के the resistance of Y is greater than the resistance of X. So let's assume that. ठीक है ना? तो हम इसको लेके प्रोसीड करते हैं और हम इन दोनों के हिसाब से निकालते हैं करंट. तो V इज इक्वल टू आई आर से हम करंट निकाल लेते हैं. वोल्टेज 12 है, इज इक्वल टू आई इंटू आर विच इज 400. तो 12 divided by 400 will equal to 0.03 ampere. That will be the current in the 400 ohm resistor. But in the other V is equals to IR. अगर आप V12 लो, आप I ही लो और resistance 600 लो, so you'll get an answer of I think 0.005 or divide by 600. 0.002 I think. Yeah, 0.02 sorry. So that would be the answer. तो आपको कहाँ नजर आ रहा है कि करंट कम है? करंट इज लेस इन द रेजिस्टेंस, द ग्रेटर रेजिस्टेंस. द करंट इज लेसर इन द ग्रेटर रेजिस्टेंस. सो दैट प्रूव्स कि जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी उतना कम करंट होगा. तो the current in Y should be less than the current in X because the resistance of Y is greater than the resistance of X. Just like I proved to you. These are not official values. These are just made up values for you to understand the concepts. So current in Y will be less than the current in X. आगे देखते हैं. B. The student connects thermistor X in series with the resistor Y and the battery of EMF 6 volts as shown in figure 5.2. In 5.2 we can see the voltage is 6, I mean the EMF, and there is a thermistor and a fixed resistor. In this circuit at room temperature the resistance of thermistor X is 600 ohms and the current in thermistor X is 0.002 amperes. Calculate the power produced in the thermistor. The power, अगर पावर निकालनी है तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज कर लेंगे which is P is equals to I square over I square into R.
हमारे पास पी निकालना है, आई कितना है हमारे पास 0.002 इंटू आर विच इज 600। तो अगर हम इसको करें 0.002 स्क्वायर इंटू 600, this will give us the power which is 0.0024. P will be equal to 0.0024. समझ आई? This is, एक सेकेंड, I square over R, I square into R. So that would be, power would be 0.0024 watts. समझ आ गई? तो आगे देखते हैं। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ Y। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ Y हम ऐसे निकालेंगे रेजिस्टेंस Y की कि हमें पहले रेजिस्टेंस निकालने के लिए फिगर आउट करने पड़ेगा इधर वोल्टेज कितनी यूज हो रही है, एंड दैट कैन इजीली बी कैलकुलेटेड यूजिंग डिफरेंट फॉर्मूलाज। हम सिंपलेस्ट फॉर्मूला से अप्लाई करेंगे कितनी वोल्टेज यूज हो रही है, विच इज V इज इक्वल टू आई आर 0.002 इंटू आर विच इज 600। हमारे पास 0.002 इंटू आर will get us 1.2. So 1.2 volts are being used across the thermistor X. So that leaves us with 6 minus 1.2, which will be 4.8 volts for the fixed resistor Y. ठीक है ना? तो हमारे पास वोल्टेज आ गई है, राइट? अब हमने वोल्टेज से अब हम सीधा सीधा वो निकाल लेंगे रेजिस्टेंस। तो हम फिर से V इज इक्वल टू आई आर लगाएंगे। वोल्टेज हमारे पास 4.8 आ गई है, इंटू आई क्या हमारे पास, आई है हमारे पास 0.002 इंटू आर विच वी हैव टू फाइंड 4.8 डिवाइडेड बाय 0.002 will be equals to resistance which is 2400। 2400 ohms will be the resistance। समझ आ गई आप लोगों को? Part 3. The thermistor is cooled. Explain why this causes the potential difference across Y to decrease. When the thermistor is cooled, जब थर्मिस्टर को कूल करेंगे तब रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट आएगा? जब थर्मिस्टर कूल होएगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगी, और जब थर्मिस्टर वार्म होएगा तब रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगी। एंड सिंस इधर जो है रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रही है, देयरफॉर इट विल रिक्वायर मोर वोल्टेज। ठीक है ना? अगर इधर रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगी तो यहाँ मोर वोल्टेज रिक्वायर्ड होगी, और जब यहाँ मोर वोल्टेज यूज होगी तो यहाँ कम वोल्टेज पहुंचेगी, और जब रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी तब करंट कम होएगा, राइट? बिकॉज दे हैव इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप। अगर आपको मैं प्रूव करके दिखाऊं, विच विल बी इक्वल्स टू V इज इक्वल्स टू आई आर, V इज इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाय R इज इक्वल्स टू I। समझ आई? सो या, तो one thing के when the resistance of X is increased, there will be a larger portion of voltage being consumed by X and less will be left for Y। ठीक है ना? Second of all, the current will decrease। The current will decrease due to the resistance increasing। जब resistance increase होगी तब current decrease करेगा, because they have an inversely proportional relationship। ठीक है ना? और फोर्थ, आई मीन थर्ड, जो थर्मिस्टर होता है दैट इज डिपेंडेंट ऑन वार्मथ, और मतलब टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है, और टेम्परेचर पे ऐसे डिपेंडेंट होता है कि जब वार्म होगा तब उसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी, जब कोल्ड होगा उसकी इंक्रीज होगी रेजिस्टेंस। सो दैट इज हाउ इट इज अफेक्टेड यूज बाय टेम्परेचर्स। तो या, सो देयर विल बी अ लेसर part or lesser division for the voltage across Y। आगे पढ़ लेते हैं। करंट इन थर्मिस्टर डिक्रीजेस और पोटेंशियल डिवाइडर आर्ग्यूमेंट यूज टू एक्सप्लेन डिक्रीज इन पीडी। पीडी अक्रॉस एक्स इंक्रीजेस व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, अगर यहां से 6 आ रहे हैं वोल्ट्स, राइट, और जो एक्स है वो 1.8 वोल्ट्स ले लेते हैं अपना, तो बाकी के कितने बचेंगे? 4.2, राइट? तो 4.2 ही उसको मजबूरन y को लेना पड़ेगा।
volts. So yeah, that is gonna be it for this video. I hope you enjoyed. Have a great day. Allah Hafiz.